نیتشے نے ایک کتاب میں اینٹی کرائسٹ میں مسیح الدجال کے شروع میں یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنی موت کے بعد مشہور ہوں یا اپنی موت کے بعد سمجھے جائیں. میرے خیال میں جان صاحب کی شخصیت بھی ایسی شخصیت ہی ہے. سب سے پہلے اس بات کا جواب کہ میں یہ سب کیوں کرتا ہوں، تو اس کا بس ایک ہی جواب ہے کہ جون کو پیش کرنا میرا شوق ہے، جون کو پیش کرنا میرا جنون ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے پیش کروں. اس پروجیکٹ میں ان لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی میں نے جو اردو ادب میں کسی بھی حوالے سے اپنا مقام رکھتے ہیں. اس میں جون کی شاعری کے بارے میں سوالات کی گئے ہیں، جون کی طنزیہ شاعری کے بارے میں کھل کے گفتگو کی گئی ہے، جون کے اردو ادب کے مقام کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور ان چیزوں پہ بات بھی کی گئی ہے کہ آج کا شاعر کیوں جون کے لہجے میں شعر کہنے پہ مجبور ہے، اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو جون کو دوسرے دیگر شاعروں سے ممتاز کرتی ہیں. ان سب حوالوں سے کھل کے بات کی گئی ہے. خاکا لگتا ہوں، ایک تماشا لگتا ہوں. ہم جو خود بھی کہیں نہیں موجود، ہم نے اپنی طرف خدا بھیجا. اپنی خلوت میں مخبری کے لیے ہم نے خود کو جدا جدا بھیجا. جان ایک وسیع و عریض اداسی ہے. تاریخ ادب میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس بیان کے ساتھ کلام کیا ہو کہ میں رائے گاہ گیا. اس اعتراف اور وجود کے اعتراف کے ساتھ کہ بھئی یہ ایک رائے گاہ اور ناکام شخص کی شاعری ہے. جان کی شاعری پہ اگر بات کی جائے تو جان کی شاعری روایت پسندی کی شاعری ہے، بلکہ روایت پسندی کی بھی نہیں، کلاسیکیت کی شاعری ہے. انہوں نے اردو کے اس دور میں، کیونکہ وہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے اپنے خاندان کے اندر اور ان کے شہر کے اندر امروہہ کے اندر شعری روایت بہت مضبوط تھی، تو جان نے اس روایت کو برقرار رکھا. لیکن اس کے اندر ایک جو خوشگوار پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جان نے اس روایت کو موجودہ تجربے کے ساتھ ڈھالا. یعنی صورت نہیں بدلی، حیت نہیں بدلی، فارم نہیں بدلی، لیکن اس کے اندر کانٹینٹ جو تھا وہ نیا ڈالا. یہ بنیادی طور پر کسی شاعر کا ایک عظیم کارنامہ سمجھا جا سکتا ہے. اگر ان کی شاعری پڑھی جائے اور ان کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے اور ان کی شاعری کا بنیادی مواد جو ہے وہ عربی، فارسی اور عبرانی جیسی شعری اور ادبی روایات سے اٹھایا گیا ہے، تو ہمیں جان کی کلاسیکیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ وہ ہوتا ہے جو کہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ تصویر کو پلٹ دیتے ہیں اور کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. یہ تصویر کا پہلا اور دوسرا رخ جو ہوتا ہے، یہ دونوں رخ دکھانے میں انسان کو کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. نہ اس کے معاملے میں کوئی سماجی دباؤ سامنے آتا ہے، نہ کوئی روایتی دباؤ سامنے آتا ہے. آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو بیان کر دیتے ہیں. ہمیشہ آپ کو پریشانی کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب آپ کو تصویر کا کوئی تیسرا رخ بھی دریافت کرنا پڑے. جان صاحب کی اپنے زمانے کے شاعروں کے مقابلے میں جو امتیاز حاصل ہے وہ ہے ہی یہی کہ وہ ہمیشہ تصویر کا ایک تیسرا رخ بھی دکھاتے ہیں. شاعروں نے دوسرے رخ بہت زیادہ دکھائے ہیں، لیکن تیسرا رخ دکھانے کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ آپ کو حضرت جان کے ہاں ملے گا. چاہے وہ وصل کی بات کریں، چاہے وہ ہجر کی بات کریں، چاہے وہ انسانی تاریخ کی بات کریں، چاہے وہ آپ کی ثقافت اور آپ کی روایت کی بات کریں، چاہے وہ آپ کی تہذیب کی بات کریں، چاہے وہ آپ کی سیاست کو زیر بحث لائیں. وہ جب بھی بات کریں گے وہ ہمیشہ آپ کو ایک تیسرا رخ دکھائیں گے. جان لیہ کے بارے میں ایک چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم یہ پائی جاتی ہے کہ جان نے جذبات کو اسی طرح بیان کیا ہے جو اس کے تجربات اور اس کے مشاہدات ہیں. جو نے لگی لگائی باتوں کو بھی بیان نہیں کیا، چاہے وہ وصل ہو، چاہے وہ فرقت ہو، چاہے وہ گمان ہو، چاہے وہ یقین ہو، وہ سب وہی ہیں جو جان کے اپنے ہیں، جو جان نے محسوس کیے ہیں، یہ جن کے مشاہدات جان نے کیے ہیں، یہ جن کے تجربات جان نے کیے ہیں. غم فرقت کا شکوہ کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی ہے. جان کی شکایتیں ہیں. جان
जज्बों में भी मुनाफिकत का कायल नहीं है। गजल में जॉन ने जो उसलूब, जो सिग्नेचर स्टाइल दिया, उसको जॉन के बाद अब लोग फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सनद है कि आपके आने वाले आपके स्टाइल से मुतासिर हैं और आपके काम को फॉलो कर रहे हैं। ये एक शायर की अजमत की एक और तरीके, एक पैरामीटर। उसके बाद आप ये देखते हैं कि आने वाले लोग किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। उस स्टाइल ही की बात नहीं है, उसके फॉलोअर्स की। तो हम ये भी देखते हैं कि जॉन अब, जैसा कि मैंने कहा, कि किस तरह से नई नस्ल के शायरों को उसने मुतासिर किया और किस तरह से अब एक ट्रेंड बन गया है कि जॉन की गज़ल की जो मकालमत का लहजा है, जिस तरह से जॉन ने गज़ल की, उसको लोग उस तरह से फॉलो कर रहे हैं। बागी हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। बगावत से मुराद वो होती है कि जो आपके पास सिस्टम है, आपको सिस्टम में जो फ्लॉज दिखते हैं, आप उनकी दुरुस्तगी चाहते हैं, आप उनको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो ये बगावत नहीं होती। बगावत आउटराइट एक चीज़ को रिजेक्ट करना होता है। जॉन का कलाम पढ़ के, उसकी नसर पढ़ के आप शायद ज़बरदस्ती कह लें, लेकिन इंसाफ से अगर आप फैसला करना चाहें तो आप ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि उसने किस चीज़ को निगेट किया, किस चीज़ को एक्सेप्ट किया। राइट? कोई क्लियर लाइन आपको नहीं मिलेगी उसकी एक्सेप्टेंस में और उसकी रिजेक्शन में। यू विल फाइंड एन एग्नोस्टिक बिहेवियर, एक अजीब सी लादरियत सी मिलेगी। हाँ, जहाँ पर निगेशन मिलेगा, जहाँ वो निगेट करेगा, वहाँ वो अपनी ज़ात को निगेट कर रहा होगा। क्या तुमको इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूँ? क्या तुमको इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूँ? तुम नहीं चाहते मेरा होना, चलो अच्छा है मैं नहीं होता। मतलब दिस इज सो अमेजिंग। होना जो है ये हस्ती का जो सबूत है, ये बहुत बड़ा एक मामला है। इस पर लोगों की जाने गई है और जॉन की पूरी शायरी इस होने और ना होने के बारे में। जॉन ने हमेशा इस बात पर इसरार किया है कि मैं नहीं। क्यों? वो किस ना होने की तरफ इसरार करते हैं? वो इस ना होने की तरफ इसरार करता है कि ये जो मुआशरे का ये जो सो कॉल्ड किस्म की तहजीब हम पर लागू कर दी गई है, जिसको हम समझते हैं कि मुनाफिकत में जीना बहुत बड़ा जीना है। जैसे जॉन ने एक जगह कहा कि मुहज़्ज़ब आदमी पतलून के बटन तो लगा, कि इर्तका है इबारत बटन लगाने से। तंज है ना बहुत बड़ा, कि आप जितने अच्छे आपने लिबास पहना है, खा आपकी तालीम कुछ हो, खा आपके नजरियात कुछ हो, खा आप कितनी ही बड़ी फिक्री कसमपुसी या अफलास का शिकार हो, लेकिन लिबास अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, आपका देखना टिप टॉप, ये जो चीज है, तो ये जॉन इन सब चीजों के खिलाफ है। जॉन हर उस चीज के खिलाफ है जिसके हक में ये सारे का सारा सो कॉल्ड मुआशरा जो है ना नजर आता है, जिसके हक में दलाइल दिए जाते हैं, वो इन सब चीजों के खिलाफ है। वो तोड़ देता है, वो किसी ऐसी ताल्लुक के खिलाफ है कि जो मसनूई हो। अगर हम एक जुमले में इस जॉन की पूरी शायरी का थोड़ा सा करना चाहें तो जॉन हर तरह के मसनूईपन के खिलाफ है। जब किसी शायर की अज़मत की बात की जाती है तो उसकी सबसे बेहतरीन तख्लीक़ात को ढूंढ के सामने लाया जाता है ताकि उसकी अज़मत को साबित किया जा सके। लेकिन जॉन के यहाँ मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि जॉन की अज़मत को साबित करने के लिए आपको उनकी तख्लीक़ात में से कुछ बेहतरीन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जॉन के किसी भी मजमूए कलाम को आप कहीं से भी खोल लें, जॉन आपको आपकी सोच से आगे और एहसास की बुलंद तरीन सतह पे चलता हुआ नज़र आएगा। जॉन एलिया ने लिखने वालों का मेयार तो बुलंद किया है, लेकिन जॉन एलिया ने पढ़ने वालों का मेयार भी बुलंद कर दिया है। ये तय है कि जॉन का मुकाम उर्दू शायरी, उर्दू अदब कभी तय नहीं कर सकेगा, और जॉन उर्दू अदब के लिए हमेशा एक मसला बना रहेगा। जॉन एलिया को मैंने बंद अक्लों की जो बखिए हैं ना, वो भी उधेड़ते देखा है। जॉन एलिया चौंका देने वाली शख्सियत है। जॉन एलिया अपनी शायरी के अंदर बहुत सी जगह तंज भी कर रहे हैं और बहुत सी जगह वो शिकायतें शिकवे भी करते दिखाई देते हैं। जॉन एलिया को अगर हम उनकी शख्सियत के अंदर एक पढ़ाई के अंदर ढाल दें तो मेरे ख़्याल से कि ये नामुमकिन है। अपनी महबूबा को इस कदर इज़्ज़त देते हुए जॉन एलिया ने अपनी शायरी में बयान किया है कि बहुत से लोगों के लिए वो समझना बहुत मुहाल है, और बहुत से लोगों ने उसको गलत पैराई में भी लिया। फिर जॉन फरमाते हैं, चाँद ने तान ली है चादरे अबर, अब वो कपड़े बदल रही होगी। इस कदर इज़्ज़त व मकाम मैंने किसी शायर को शायरी में
अपनी महबूबा को देते हुए नहीं देखा। जॉन की शायरी का कोई पहलू भी जॉन की नफी पसंदी से या जॉन की अपनी ज़ात के ऊपर बेतहाशा इसरार से नहीं बचा। अब जाके लोगों ने उनके ख़ानदान पे, उनकी ज़ात पे, उनके रवैये पे, उनके किरदार पे हाथ डाला है। शायद इसीलिए डाला है कि हर मशहूर आदमी का ये मसला होता है कि जब वो मशहूर हो जाता है तो उसके ऊपर सबसे पहले तनकीद ही होती है। तो उनके ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन अच्छा होता कि उनके कलाम पे तनकीद होती, उनके कहे हुए शेर के ऊपर तनकीद होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहरहाल असल में जो फ़ैसला करना है वो करना है एक आम पढ़ने वाले ने और सुनने वाले ने। हमारे जो नक़ाद हैं या जो कर रहे हैं उनकी जो तनकीद है वो तो उसूल व मबादी पे होनी है, वो तो फ़न पे होनी है, वो तो टेक्निक पे होनी है, इन चीज़ों पे होनी है। लेकिन एक सुनने वाला जो है उसने सिर्फ उसका पैमाना एक है, और वो ये कि ये शेर मुझ तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, और दूसरा ये कि ये शेर मेरे जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मुझसे अगर सच पूछा जाए तो हज़रत जॉन इस वक्त तन्हा इज्तिमाई शऊर की तर्जुमानी कर रहे हैं। जैसे कि जॉन के यहाँ आपको खुशी का रद भी दिखाई देता है और गम का रद भी दिखाई देता है। हमारे यहाँ लिटरेचर में, उर्दू अदब में ख़ास तौर पे, फ़ारसी अदब में भी, अरबी अदब में भी जो हुज़्न की कैफियत है, जो दुख और हिज्र की जो सूरत हाल है, उसके साथ एक रोमांटिसिज्म हमेशा जुड़ा रहा है। जॉन ने खुशी को भी रद्द किया है और नफ़ी की है गम की भी। जैसे कि उनका एक शेर है कि हर एक हालत के बैरी हैं ये लम्हे, हर एक हालत के बैरी हैं ये लम्हे, किसी गम के भरोसे पर ना रही हो। तो इसमें वो नेगेट कर रहे हैं खुशी को भी और रद्द को भी। किसी गम के भरोसे पर ना रही हो, हर एक हालत के बैरी हैं ये लम्हे। जॉन साहब की शायरी का तमाम तर मौजू सिर्फ और सिर्फ जॉन एलिया थे, लेकिन जॉन एलिया होना ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि जॉन एक वसी तर समाजी और तारीखी तजर्बा है मेरे ख्याल में, जो इस समाज ने अपने साथ खुद किया है। अगर आप समाजी ज़रा अबलाग पे चलेंगे उर्दू पढ़ते पढ़ते तो ये मुमकिन नहीं है कि आप हज़रत जॉन तक ना पहुँचें। और अगर आप किताब पढ़ लें और आपको शायरी की तलाश है पाकिस्तान में, तो आप चलें तो ये मुमकिन नहीं है कि आप हज़रत जॉन तक नहीं पहुँचें। तो ये दो ऐसी धारें निकल आई हैं कि उन धारों में से आप कहीं से भी चलेंगे तो पहुंचेंगे आप हज़रत जॉन पे। और हज़रत जॉन तो रास्ते का एक ऐसा पड़े हुआ एक ऐसा पत्थर है कि या तो आपके पाँव रोक लेगा और या तो आप कोशिश करेंगे कि उसको सर पे रख के आगे बढ़ा जाए, और इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। उससे गले मिलकर खुद को तन्हा लगता हूँ। इश्क को बीच में ना लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। एक बॉडी, तलब और हवस का फर्क यहाँ पर मुलाजा फरमाए। वो कहते हैं इश्क को बीच में ना लाओ कि मैं, यानी जॉन लम्स की इब्तदाई सतह पर भी दोगलेपन का वो दोगलेपन को बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो करता ही नहीं है बर्दाश्त। वो इतना बड़ा आदमी है कि इश्क को बीच में ना लाओ। वो जानता है कि इश्क क्या है। ये एक अलग कैफियत है। चीखता हूँ बदन की उसरत में, एक बॉडी, एक फिजिकल एक्सपीरियंस। कितने लोग हैं जिन्होंने इसका ऐसे इजहार किया हो। बाकी वो शायर रहता है जिसका एक मिसरा उसके शेर से, शेर उसकी गज़ल से, गज़ल उसके मुकम्मल कलाम से मिलकर फिर जो शख्सियत आपके सामने पेश करती है और मुकम्मल तौर पर पेश करती है, सिर्फ वो आपके सामने बाकी रहता है। वहाँ पर आपकी कामयाबी और नाकामी का फैसला हो जाता है। और बार बार मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि ये फैसला जो है वो हो चुका है। ऐ खुदा जो कहीं नहीं मौजूद। अच्छा, क्या लिखा है हमारी किस्मत में? मैंने सवाल देखना है, आपने जवाब देखना है। कोई सवाल देखेगा, कोई जवाब देखेगा। बात बताने की ये है कि बाकी सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ रहेगी, वो शायरी रहेगी जो अपने असरी शऊर के साथ मिलके, असरी शऊर से मुराद ये है कि उस वक्त के शऊर के साथ मिलके, जिस वक्त वो पीस ऑफ आर्ट, शायरी हो चाहे कोई और पीस ऑफ आर्ट हो, वो क्रिएट हो रहा है, अपने असरी शऊर के साथ मिले और अगले आने वाले शऊर को एड्रेस करती रहे। वो जारी रहेगी। सो जॉन के पास जारी है। आमतौर पे सोशल मीडिया पे यह तासुर दिया जा रहा है कि जॉन एलिया एक मुल्हिद इंसान थे। ये बड़ी अजीब बात है। जॉन एलिया मैं समझता हूँ कि एक तगय्युर पजीर आदमी थे और वो जिस बात को कबूल करते थे
उसी शिद्दत के साथ उसको रद्द भी करते थे अगर उनको उससे बेहतर बात मिल जाती थी। तो जो आदमी एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होने में ज़रा झिझक महसूस नहीं करता, आप उसको किसी मजहबी या गैर मजहबी रंग में कैसे डाल सकते हैं? जॉन एलिया को शख्सियत को आप एक तरफ रखें, जॉन एलिया की शायरी को देखें, वो एक अजीम शायर थे, और अगर आप जॉन की शख्सियत में उलझे रहेंगे तो आप एक बहुत अजीम शायर की अजीम शायरी को मिस कर देंगे। जॉन एलिया की शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ अगर आपने होना है, फिर आपको जॉन को शख्सी तौर पे देखने के बजाय एक शायर के तौर पे, एक अदीब के तौर पे देखें, तो आपको वो जॉन नज़र आएगा जो आपको चाहिए। जॉन एलिया को आजकल लोग जो हैं उनके नाम के आगे जॉन औलिया लगा रहे हैं या उनको सूफ़ी बना के पेश किया जा रहा है, तो मैं बोलूँगी जॉन एलिया ही थे। उनको किसी भी शख्सियत या किसी भी किस्म के फ़िरके में ढालने से ना जॉन नहीं ढलेंगे। जॉन अपने मिजाज का आदमी थे, वो अपने हिसाब से चलना जानते थे और वो लोगों को सोचने पे और चौंका देने की जो है वो भरपूर सलाहियत रखते थे। सारे रिश्ते तिश्ना है, क्या मैं दरिया लगता हूँ। सारे रिश्ते तिश्ना है, क्या मैं दरिया लगता हूँ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जॉन एलिया की। जॉन इंतकाल के वक्त उतना मशहूर और मकबूल नहीं थे जितना कि आज है। जब मैं 1996 में कराची यूनिवर्सिटी में था, मुझे उनका ये तारुफ कराना पड़ता था कि जॉन एलिया रईस अमरूबी के छोटे भाई हैं, और उनको लोग जानते नहीं थे उस वक्त। आज ये बात होती है कि रईस साहब जो हैं वो जॉन एलिया के बड़े भाई थे। तो जॉन ने अपने आप को बगैर किसी लॉबिंग के, बगैर किसी सरकारी सरपरस्ती के, बगैर किसी रैकेटियरिंग के मनवाया है, और जॉन को लोग खुद अब डिस्कवर करके पढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जॉन की अजमत की एक बहुत बड़ी दलील है। जॉन का हकीकी मकाम क्या है या शेरी रवायत के अंदर उस मकाम को कैसे फिट किया जाएगा, ये बताते खुद एक मसला है, क्योंकि जॉन अपनी पूरी शख्सियत में या अपनी शख्सियत के जौहर में एक नबी पसंद आदमी है। आप उसको शेरी रवायत के अंदर मजबूत करेंगे, शेरी रवायत के अंदर फिट करके उसके कोई मकाम का जायज़ा लेंगे, तो जॉन साहब खुद उस मकाम की नफी पर उतर आएंगे। जॉन का मकाम शायद यही है कि जॉन का मकाम कभी तय नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जॉन कन्फ्यूजन का शायर है। जॉन एक उस सूरत हाल का शायर है जिस सूरत हाल का कोई किस लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। अगर उसको पढ़ने वाले उसके किसी शेर को या मुकम्मल कलाम को या कहीं से भी किसी भी हवाले से उसको जानकर जॉन के बारे में एक राय बना लें, तो सख्त ये नाइंसाफ़ी होगी। ये उसको महदूद करना होगा, या अपनी राय बना के दूसरे की राय को रद्द कर दें। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। ये हज़रत जॉन का ही लहजा हो सकता है, ये हज़रत जॉन ही फरमा सकते हैं। तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू हो के बासी कहाँ से आती है। ये हज़रत जॉन का लहजा है, ये हज़रत जॉन ही कह सकते हैं। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। जॉन के कई अशार ऐसे हैं जो किसी भी हसास इंसान को रुला सकते हैं, तड़पा सकते हैं। जैसे ये देख लें कि यादें हैं या बलवा हैं, चलते हैं चाकू मुझ में, मैं तो एक जहन्नम हूँ, क्यों रहता है तू मुझ में। खूने गर्म अपना पारचे अपने, मैं खुद अपने ही मेज पर चाहूँ। जॉन कहीं कहीं पर अपना बहुत दुश्मन होता था। कौन है किसकी आरजू कीजिए, किसके लहजे में गुफ्तगू कीजिए। एलिया जॉन खून थूक चुके, आप उस खून से वजू कीजिए। जो जॉन के पढ़ने वाले हैं उनको वो नशा कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसे कौन बोलेगा और ऐसे कौन गुफ्तगू करेगा। हार ना है हार जाना फारे। तो ये सिर्फ जॉन का,
जॉन के अलावा कोई नहीं। सफेद चंबेली तुझे बुलाती है। हम जो बातें जनों में बकते हैं, देखना जावेदानियाँ होंगी। तेरी महफिल में हम ना होंगे पर हमारी कहानियाँ होंगी। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी मदद की, इस मेरे प्रोजेक्ट को संजीदगी के साथ लिया, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किसी भी हवाले से जिन लोगों ने मेरी मदद की, जिन लोगों को इसमें शामिल नहीं कर सका, उनसे बहुत माजरत। बाकी यही मुमकिन था इतनी उजलत में।